Hi students, welcome to my YouTube channel JEE Maths Guru, and in this lecture we are going to solve important problems of trigonometric equation, and specially we are solving the solution of trigonometric equation, that is the principal solution. So this lecture is specially made for MHT CET, and in this lecture level of MCQs are according to MHT CET. अगर आपको जेई लेवल के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन के प्रॉब्लम्स चाहिए, यानी इससे हाई लेवल के क्वेश्चंस अगर चाहिए, सो दैट लेक्चर इज आल्सो अवेलेबल फॉर यू एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So today's lecture is also important. All the important problems will be solved in this lecture of principal solution. So types of problems are number of solutions और क्या क्या solutions होते हैं, which are the solutions and number of solutions. इस टाइप के questions हम solve करेंगे और इसी टाइप के questions CET या JEE में पूछे जाते हैं. So students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and please hit the bell icon to get the notification of my newly uploaded videos. So start the question number 1. See on the board. First question of principal solution, that is the solution of trigonometric equation. And in this question number 1, I have to find the principal solution of the equation sin 2x plus cos 2x equal to 0 where x is less than 2 pi and greater than pi. So this is the previous year question of MHT CET. CET में क्वेश्चन पूछा जा चुका है. So my given equation is sin 2x plus cos of 2x equal to 0, and I have to find the principal solutions of this equation in the interval pi to 2 pi. So I will convert this equation in only one trigonometric ratio. So sin 2x equal to minus cos 2x, and sin 2x by cos 2x is tan of 2x, and therefore tan of 2x equal to minus 1. And here I have given x is less than 2 pi, greater than pi. So here x belongs to pi to 2 pi. I have to find the values of x in the interval pi to 2 pi, but here the angle of tan is 2x. So this 2x belongs to 2 pi to 4 pi. तो पहले मैं 2x फाइंड आउट करूँगा इन द इंटरवल 2 pi to 4 pi. So here 2x is equal to 2x को मुझे फाइंड आउट करने का है इन द इंटरवल 2 pi to 4 pi as x belongs to pi to 2 pi. तो पहले मैं 2 pi to 4 pi में मुझे फाइंड आउट करने का है. सो हियर इज 2 pi. सो 2 pi के बाद यहाँ पे आएगा 3 pi, फिर यहाँ पे आएगा 4 pi. ओके, सो 2x इज इक्वल टू, सो हियर वैल्यू ऑफ tan इज नेगेटिव. सो tan इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट and fourth quadrant. Tan is negative in second and fourth quadrant, tan is positive in first and third quadrant. तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या होगा, जब मैं 2 pi से मुझे स्टार्ट करने का है, आई हैव टू फाइंड 2x फर्स्ट. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 2 pi, ऐसा राउंड लेके फिर मुझे 4 pi तक आने का है, वन कंप्लीट राउंड फ्रॉम 2 pi to 4 pi. सो 2x से यहाँ पे आऊँगा तो इससे ये सेकंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन मिलेगा मुझे 3 pi माइनस tan 2x इक्वल टू -1 है, तो थीटा मुझे लेना पड़ेगा पाई बाय 4. एंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट इज 4 pi minus pi by 4. So here is the solution of tan of 2x equal to -1 in second and fourth quadrant. तो सेकंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन मिलेगा 3 pi minus pi by 4, और फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन मिलेगा मुझे 4 pi minus pi by 4. तो इस तरह से 2x मिल जाएगा मुझे 11 pi by 4, एंड दिस 4 pi minus pi by 4 will be equal to 15 pi by 4, but I have to find the x. So x will be equal to 11 pi by 8 and 15 pi by 8. So these are the principal solutions of this equation sin 2x plus cos 2x equal to 0 in the interval pi to 2 pi, 11 pi by 8, 15 pi by 8. So 11 pi by 8 and 15 pi by 8, this option is D is correct.
तो इसी तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं कि कोई इक्वेशन में किसी गिवन इंटरवल में क्या क्या सॉल्यूशन होते हैं या कितने सॉल्यूशंस होते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछेंगे 1 2 3 4 जितने होंगे उतने, या फिर गिवन इंटरवल में क्या क्या सॉल्यूशन है। इसी टाइप के क्वेश्चंस JEE एग्ज़ाम में और CET एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। सो ऑल द एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1 and now we will see the next question number 2. See on the board of solution of trigonometric equation for MST CET. So second question में मुझे इक्वेशन दिया है sin 2 theta equal to -1/2, principal solution of sin 2 theta equal to -1/2, and here is also the theta belongs to 0 to 2 pi. Interval is given between 0 to 2 pi. So given equation is sin of 2 theta equal to -1/2 and theta belongs to 0 to 2 pi, but here the angle of sin is 2 theta. तो पहले मुझे 2 थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 2 थीटा मुझे कहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, 0 to 4 पाई में। सो 0 to 4 पाई में मुझे, यानी मुझे 2 पाई के 2 कंप्लीट राउंड करने के हैं। सो आई विल डिवाइड दिस लाइक, पहले मैं 0 से 2 पाई तक जाऊंगा। ओके, अब मैं 2 पाई तक आ चुका हूँ। फिर मैं 2 पाई से 0 से पाई, फिर 2 पाई आएगा। फिर 2 पाई से मैं 3 पाई, और 3 पाई से फिर मैं आऊँगा 4 पाई तक। हियर I have to find theta in the interval 0 to 2 pi. बट हियर एंगल ऑफ साइन इज 2 थीटा, तो पहले मुझे 2 थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 2 थीटा कहाँ से होगा, 0 से 4 पाई तक। सो 0 से पहले मैं 2 पाई तक जाऊँगा, फिर 2 पाई से मैं जाऊँगा 4 पाई तक। सो हियर 2 थीटा इज इक्वल टू, अब वैल्यू ऑफ साइन इज निगेटिव, तो साइन इज निगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन इज निगेटिव एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहले मैं थर्ड क्वाड्रेंट का सोल्यूशन लिखूँगा। पाई प्लस थीटा कितना लिखने का है, π/6 साइन 31/2। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का सोल्यूशन लिखूंगा 2 पाई माइनस π/6। फिर मैं लिखूंगा इस थर्ड क्वाड्रेंट का सोल्यूशन, फिर 2 पाई से 4 पाई तक लिखने का है। सो दिस थर्ड एंड दिस फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये सोल्यूशन मिलेगा मुझे 3 पाई प्लस π/6 थर्ड क्वाड्रेंट का सोल्यूशन, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का सोल्यूशन मिलेगा मुझे 4 पाई माइनस π/6। तो ऐसे मुझे 4 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इस टाइप के जो भी इक्वेशन होते हैं 0 to 2 पाई में हमें 2 सॉल्यूशंस मिलते हैं, पॉजिटिव वैल्यू के 2 सॉल्यूशंस, नेगेटिव वैल्यू के 2 सॉल्यूशंस। सो जब भी इंटरवल का पीरियड 2 पाई का होता है 2 सॉल्यूशंस मिलते हैं, 4 पाई का सॉल्यूशन होता है तो 4 सॉल्यूशन मिलेंगे। इस तरह से आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी देखने को मिलेंगे। सो हियर 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 थीटा देखिए क्या होगा, फिर दिस 2 थीटा विल बी इक्वल टू, तो ए हो जाएगा 7 π/6, दिस इज 11 π/6, दिस इज 19 π/6 एंड दिस इज 23 π/6। बट आई हैव टू फाइंड थीटा, सो दिस इज 7 π/12, 11 π/12, 19 π/12 and last is 23 π/12. So this is the solution of this trigonometric equation. 7 π/12, 11 π/12, 19 π/12 and 23 π/12. 7 π/12, 11 π/12, 19 π/12 and 23 π/12. So these are the solutions in the first option. So यहाँ पे 0 to 4 पाई की इंटरवल थी। So first you find the solutions in 0 to 2 pi and then you find the solutions from 2 pi to 4 pi. एंड साइन इज नेगेटिव, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के हैं। और वो भी टेक्निक मैंने लास्ट लेक्चर में बोली थी, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, फॉर थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा, फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस थीटा। लेकिन इंटरवल 2 पाई से 4 पाई है तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा मुझे 3 पाई प्लस थीटा, और यहाँ का सॉल्यूशन मिलेगा मुझे 4 पाई माइनस थीटा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सेम टाइप के क्वेश्चंस इसमें आपको दिखाई देंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये लेक्चर देखने के बाद आप खुद भी इन सभी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या सेल्फ यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स।
वीडियो पॉज कीजिए, सेल्फ ट्राई कीजिए और बाद में आंसर चेक कीजिए. सो ऑल दिस प्रॉब्लम्स विल रियली इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस. सो थर्ड इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ tan 3 theta equal to -1. Tan of 3 theta equal to -1. See on the board question number 3, tan 3 theta equal to -1, and here also theta belongs to 0 to 2 pi. Theta belongs to 0 to 2 pi, but here angle is 3 theta, तो मेरा 3 theta होगा 0 to 6 pi में. तो मुझे पहले 3 theta फाइंड आउट करने का है और इंटरवल क्या है 0 to 6 pi. तो मुझे 3 इंटरवल में इसको डिवाइड करता हूँ, 0 to 2 pi, 2 pi to 4 pi, 4 pi to 6 pi. ओके, इस तरह से मैं डिवाइड करूँगा. 0 pi, फिर से 2 pi, 0 to 2 pi, बाद में फिर मैं 2 pi से स्टार्ट करूँगा. 2 pi से यहाँ पे आएगा 3 pi, फिर यहाँ पे आएगा 4 pi, एक इंटरवल हो गई. फिर मैं 4 pi से स्टार्ट करूँगा, फिर यहाँ पे आएगा 5 pi और फिर यहाँ पे आएगा 6 pi. ओके, तो यहाँ पे आता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इधर आता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई. तो इस तीनों का सॉल्यूशन यहाँ पे लिखने का है. tan नेगेटिव है, tan नेगेटिव कहाँ पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. यहाँ का सॉल्यूशन लिखिए. 3 theta विल बी इक्वल टू, यहाँ का सॉल्यूशन लिखिए पाई माइनस tan ऑफ पाई बाय 4 इज़ 1. तो यहाँ का सॉल्यूशन क्या होगा, पाई माइनस पाई बाय 4. इस फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या होगा, 2 पाई माइनस पाई बाय 4. इसका काम ख़त्म, इसका काम शुरू. यहाँ का सॉल्यूशन क्या होगा, 3 पाई माइनस पाई बाय 4. यहाँ का सॉल्यूशन क्या होगा, 2 पाई माइनस पाई बाय, सॉरी, अब यहाँ पे 4 पाई है तो यहाँ पे आएगा 4 पाई माइनस पाई बाय 4. अब यहाँ का सॉल्यूशन क्या होगा, 5 पाई माइनस पाई बाय 4 और यहाँ का सॉल्यूशन क्या होगा, 6 पाई माइनस पाई बाय 4. तो इस तरह से मुझे 3 थीटा मिल जाएगा. 3 थीटा क्या क्या आंसर्स मिलेंगे देखिए. तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, दिस इज 7 पाई बाय 4. ये हो जाएगा 11 पाई बाय 4, दिस विल बी 17 पाई बाय 4, दिस विल बी 19 pi by 4 and this will be 23 pi by 4. So this is 3 theta, but I have to find theta. So 3 से डिवाइड करके मिलेगा मुझे एंगल्स 3 pi by, सॉरी 3 will get cancel, pi by 4. यहाँ पे मिलेगा 7 pi by 12, 7 pi by 12, 11 pi by 12. यहाँ पे मिलेगा 17 पाई बाय 12, यहाँ पे मिलेगा 19 पाई बाय 12 और लास्ट का सॉल्यूशन होगा 23 पाई बाय 12. सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 6, 1 2 3 4 5 6. 0 to 2 पाई के 2 सॉल्यूशन, 2 पाई to 4 पाई के 2 सॉल्यूशन, 4 पाई to 6 पाई के 2 सॉल्यूशंस. तो मुझे आपको ये बताने का है कि अगर नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस पूछते हैं तो इन सभी सॉल्यूशंस निकालने की ज़रूरत नहीं है. 0 to 6 पाई यानी कितने सॉल्यूशंस हो गए, 6 सॉल्यूशंस हो गए. 0 to 2 पाई के 2, 2 पाई to 4 पाई के 2, 4 पाई to 6 पाई के 2, 2 + 2 + 2, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 6. सो हियर इज द आंसर, पाई बाय 4, 7 पाई बाय 12, 11 पाई बाय 12, 11 पाई बाय 12. समथिंग इज रॉन्ग हियर. Solution number 4, this is 15 pi by 4. ओके, देखिए 16 पाई माइनस पाई तो ये 15 पाई बाय 4 हो जाएगा और 3 से डिवाइड करने के बाद ये मिलेगा मुझे 5 पाई बाय 4. 5 फोर्थ सॉल्यूशन है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये तो करेक्ट था. थर्ड इज 11 पाई बाय 4, राइट. 11 पाई बाय 12 हो जाएगा यहाँ पे. ये है 15 पाई बाय 4 और 3 से डिवाइड करने के बाद मुझे मिलेगा 5 पाई बाय 4. ओके,
तो इस तरह से आप ध्यान रखिए, π/4, 7π/12, 11π/12, 5π/4, 19π/12 एंड 23π/12. सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 6. तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द सेम टाइप ऑन द प्रिंसिपल सॉल्यूशन. सो सी द क्वेश्चन नंबर 4. तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में. साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1/√2. साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 1/√2. प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन द इंटरवल 0 to 2π. फिर से इंटरवल 0 to 2π है. 0 to 2π. फिर से मुझे 2 थीटा फाइंड आउट करने का है 0 to 4π में. सो 2 थीटा विल बी इक्वल टू, तो ये पहले मैं 0 to 2π से स्टार्ट करूँगा, 0 से 2π तक. यहाँ पे आएगा पाई. फिर मैं स्टार्ट करूँगा 2π से, यहाँ पे आएगा 3π और फिर यहाँ पे आएगा 4π. ओके. सो साइन इज निगेटिव थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. साइन इज निगेटिव थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. सॉल्यूशन ऑफ दिस थर्ड क्वाड्रेंट विल बी इक्वल टू, क्या होगा, पाई प्लस π/4. साइन ऑफ π/4 1/2. यहाँ का सॉल्यूशन देखिए 2π माइनस π/4. यहाँ का सॉल्यूशन देखिए 3π प्लस π/4. यहाँ का सॉल्यूशन देखिए 4π माइनस π/4, क्योंकि यहाँ का एंगल 4π माइनस π/4. यहाँ 3π है, 3π प्लस π/4. यहाँ पाई है, पाई प्लस π/4. यहाँ पे 2π है, 2π माइनस π/4. तो इस तरह से मुझे 2 थीटा मिल जाएगा. 4 + 1 5π/4π प्लस π 5π/4 5π/8 राइट. ये मिलेगा 8 7π/4 13π/4 और ये मिलेगा 15π/4. सो थीटा कितना मिलेगा, 5π/8 7π/8 13π/8 एंड 15π/8. 5π/8 7π/8 13π/8 15π/8. ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो अब आपको आइडिया आ चुकी होंगी कि हमें किस तरह से प्रिंसिपल सॉल्यूशन गिवन इंटरवल में फाइंड आउट करने के हैं. सो दिस वाज फोर्थ. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, सी ऑन द बोर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए. कॉट ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 0. अगेन थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2π. cot 2 theta will be equal to 0. Theta belongs to 0 to 2π. Again here is 2 theta. So 2 theta will be belongs to 0 to 4π. So it is 0 to 2π. ओके. और फिर से 2π से लेके 4π तक. ओके. So here, so cot of 2 theta equal to 0. tan theta is not defined, so it is π/2. 2 theta कहाँ पे होगा, cot π/2 is 0, π/2. ओके. और cot of 3 π/2 is 0. so 0 to 2π में यहाँ पे cot 0 होगा, यहाँ पे cot 0 होगा, यहाँ पे भी cot 0 होगा. so it is 2π plus π/2. So this is 2π plus π/2 and this will be 3π plus π/2 या 4π माइनस π/2. तो यहाँ से मुझे 2 थीटा कितना मिलेगा, थीटा विल बी इक्वल टू 2 थीटा 0 से लेके पहले पाई तक आए हैं. पाई थीटा विल बी इक्वल 2 थीटा विल बी इक्वल टू π/2 3π/2 5π/2 7π/2 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. ओके. π/2 3π/2 यहाँ पे 5π/2 यहाँ पे 7π/2. सो थीटा क्या होगा,
थीटा क्या होगा, π/4, 3π/4, 5π/4 एंड 7π/4. π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4. Option first is correct. So this was also very a simple question. Next questions are also very important. See the question number 6. On the principal solution of trigonometric equation. तो पहले लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल टेबल में मैंने पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करने के वो मैंने बोला था, उस पर डिपेंड ये प्रॉब्लम्स है. नेक्स्ट लेक्चर में हम जनरल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो वी विल सॉल्व द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स in that lecture also. So see the question number 6. So this question is also very important. Number of roots of the equation sin x equal to 3 cos of 2x minus 1 in the interval minus pi to pi. माइनस पाई टू पाई का इंटरवल दिया है. ओके, सो गिवन इक्वेशन इज साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 cos of 2x minus 1. नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई. तो पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. साइन ऑफ 2x इक्वल टू 3 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूलाइज करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन. सो दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1. सो इट इज साइन 2x इक्वल टू 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1. तो ये बन जाएगा 6 साइन स्क्वायर एक्स. साइन ऑफ एक्स है, दिस इज नॉट 2x प्लस साइन ऑफ एक्स. सो दिस इज +2 यानी -2 इक्वल टू 0. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. 6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. टेकिंग 2 साइन एक्स कॉमन, तो ये बनेगा 3 साइन एक्स प्लस 2 माइनस 1 कॉमन 3 साइन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0. सो अगेन 3 साइन एक्स प्लस 2 इंटू 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ से मुझे साइन एक्स मिलेगा -2/3 और यहाँ से साइन एक्स मिलेगा 1/2. सो -2/3 बिलोंग्स टू -1 to 1. दिस वैल्यू इज़ पॉसिबल एंड दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल. ये तो पॉसिबल है ही. तो इंटरवल है मेरी -पाई टू पाई. तो ये जो इंटरवल है x बिलोंग्स टू -पाई टू पाई. इस इंटरवल की लेंथ कितनी आती है? मैंने बोला था 0 to 2 पाई. 2 पाई की अगर लेंथ है तो वहाँ पे हमें 2 सॉल्यूशन मिलते हैं. सो यहाँ पे लेंथ ऑफ द इंटरवल पाई माइनस पाई. लेंथ ऑफ द इंटरवल कितनी हो गई? 2 पाई. सो साइन ऑफ x इक्वल टू 1/2 के -पाई टू पाई में हमें 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे. और दिस वैल्यू इज ऑल्सो पॉसिबल. तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है तो इसके भी कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? 2 सॉल्यूशंस. और ये 2 + 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए? 4. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए? 4. सॉल्यूशन क्या क्या है वो निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. आप इसे ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं. यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन इन द इंटरवल -पाई टू पाई. साइन का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं इन द इंटरवल -पाई टू पाई. सो 0 π/2 पाई -π/2 पाई. y एक्सिस x एक्सिस ओरिजिन +1 -1 साइन ऑफ x 0 to pi and 0 to -pi. Sin x equal to 1/2. A 1/2. This is the line of 1/2. Y equal to 1/2. कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा है? 2 बार. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट. साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट. यहाँ पे भी sin x इक्वल टू -2/3. 0 to -1 में कहीं तो भी वैल्यू होगी. And this line is y equal to -2/3. So this is also intersecting at 2 times. Okay. So this is one solution. This is one solution. So number of solutions are 1, 2, 3, 4. Total number of solutions are 4.
ओके, सो दीज आर यहाँ के सॉल्यूशंस हम बता भी सकते हैं, π/6 और 5π/6। इसके सॉल्यूशंस हमें इन्वर्स में मिलेंगे क्योंकि -2/3 इज नॉट इन द टेबल ऑफ साइन। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरवल 2π की है, इंटरवल की लेंथ 2π की है, इसका मतलब इसके 2 सॉल्यूशन और उसके 2 सॉल्यूशन, 2 + 2 4 सॉल्यूशंस। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 of solution of trigonometric equation. All the questions are very important. Question number 7, 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2 sin² x प्लस √3 cos x प्लस 1 = 0, और यहाँ पे इंटरवल है -π to 3π की। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 में इक्वेशन देखिए, 2 sin² x प्लस √3 cos x प्लस 1 = 0। सॉल्व करते हैं, sin² x इज 1 - cos² x, सो इट इज 2 - 2 cos² x प्लस √3 cos x प्लस 1 = 0। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 cos² x माइनस √3 cos x, 2 + 1 3 -3 = 0। So this quadratic equation we have to solve, 2 cos² x -6 minus 2√3 minus 2√3 cos x plus √3 cos x minus 3 = 0। ओके, -6 minus √3, तो यहाँ से मुझे कॉमन मिलेगा 2 cos x, तो यहाँ पे होगा cos x, 2 cos x माइनस √3 प्लस √3 कॉमन cos x माइनस √3 = 0, तो यहाँ पे मिलेगा फैक्टर्स cos x माइनस √3, और सेकंड फैक्टर होगा 2 cos x प्लस √3 = 0, तो 2 cos x प्लस √3 = 0, तो cos x = √3 मिलेगा, और यहाँ पे cos x = -√3/2 मिलेगा। But this √3 does not belongs to -1 to 1, therefore this value is not possible. This is greater than 1, but cos, values of cos lies between -1 to 1, तो यहाँ से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यहाँ से सॉल्यूशन मिलेगी। अब इंटरवल दिया है x belongs to what, x belongs to what, क्या इंटरवल दिया है, इंटरवल दिए हैं हमें -π to 3π। अब लेंथ ऑफ द इंटरवल हम देखते हैं, इंटरवल की लेंथ क्या है, 3π माइनस ऑफ -π 4π, तो 2π की अगर लेंथ है तो 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे या इस इक्वेशन के, लेकिन इंटरवल कितनी है 4π की, तो 0 to 2π के 2 सॉल्यूशंस और फिर से 2π के 2 सॉल्यूशंस, 2 + 2 कितने सॉल्यूशंस होंगे, 4 सॉल्यूशंस होंगे। या फिर आप इसे ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं, -π to 3π में आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए cos x का, इस तरह से ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos x इन द इंटरवल -π to 3π, सो इट इज π/2 π, 3π/2 2π, 5π/2 5π/2 and 3π। ओके, सो दिस इज़ राइट हैंड साइड, और यहाँ पे मुझे -π तक जाने का है, सो इट इज़ -π/2 -π। सो cos का ग्राफ ड्रॉ करने का है, +1 -1 cos 0 1 cos of π/2 0, cos of π -1 cos of 3π/2 0, cos of 2π 1 cos of 5π/2 0, cos of 3π -1, cos of -π/2 0 -π। सो वैल्यू ऑफ cos इज निगेटिव, cos की वैल्यू कैसी है, निगेटिव, तो निगेटिव वैल्यू के लिए देखिए, सो दिस इज, बट दिस वैल्यू इज बिटवीन 0 to -1, दिस वैल्यू इज बिटवीन 0 to -1, तो x एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करने की है बिलो द x एक्सिस,
तो कितने बार इंटरसेक्ट हो रही है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 4। तो इस तरह से आप ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं, या फिर इंटरवल की लेंथ से भी आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं। अगर लेंथ ऑफ इंटरवल 2 पाई है तो 2 सॉल्यूशंस, 4 पाई है तो 4 सॉल्यूशंस, 6 पाई है तो और 2 सॉल्यूशंस। इस तरह से आप नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैलकुलेट कर सकते हो। दिस वाज 7। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8 of the solution of trigonometric equation. Question number 8 of solution of trigonometric equation. So in the question number 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है, sum of the values of x in the interval 0 to 3 pi such that the equation, see on the board question number 8, see on the board question number 8, और यहाँ पे मेरा इक्वेशन है 2 sin square x प्लस 5 sin x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और इंटरवल ये भी ध्यान में देने का है, इंटरवल इज 0 to 3 pi। सो फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज वेरी सिंपल, 2 sin square x प्लस 6 sin x माइनस sin x माइनस 3 इक्वल टू 0। टेकिंग 2 sin x कॉमन, तो यहाँ पे मिलेगा sin x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, sin x प्लस 3, अगेन sin x प्लस 3 कॉमन, तो सेकंड ब्रैकेट होगा 2 sin x माइनस 1, sin x इक्वल टू माइनस 3 एंड sin x इज इक्वल टू 1/2। दिस इज अगेन नॉट पॉसिबल, वैल्यू इज लेस देन -1, डज नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1, does not belongs to -1 to 1. Now this is simple, sin x equal to 1/2. So interval is again 0 to 3 pi. X belongs to 0 to 3 pi. ओके, कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे 0 to 3 pi में? सो 0 to 3 pi में हमें 6 सॉल्यूशन मिलेंगे, सॉरी 4 सॉल्यूशंस मिलेंगे। सीआर कैसे मिलेंगे 0 to 3 pi में? 0 to 3 pi के कितने सॉल्यूशंस होंगे? 0 pi, 2 pi, फिर 2 pi से लेके 3 pi तक। सो पहले 0 to 2 pi में साइन पॉजिटिव कहाँ पे होता है? फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। सो दिस वन सॉल्यूशन, दिस वन सॉल्यूशंस। अब 2 pi से 3 pi से लेके फिर से एक फर्स्ट क्वाड्रेंट लगेगा, फिर से एक सेकंड क्वाड्रेंट लगेगा, एक सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? 4। सो हियर आर द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 4। लेकिन हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं पूछे हैं भाई, सम ऑफ द सॉल्यूशंस पूछे हैं। ओके, सो x इज इक्वल टू, यहाँ का सॉल्यूशन बोलिए π/6, यहाँ का सॉल्यूशन बोलिए पाई माइनस π/6, यहाँ का सॉल्यूशन बोलिए 3 pi माइनस π/6, यहाँ का सॉल्यूशन बोलिए 2 pi प्लस π/6। इन सभी सॉल्यूशंस की हमें पूछी है सम, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ओके, सो यहाँ पे प्लस π/6 माइनस π/6 माइनस π/6 प्लस π/6 कैंसल, पाई प्लस 3 pi 4 pi प्लस 2 pi, सम ऑफ द सॉल्यूशंस कितना आएगा? 6 pi। सो सम ऑफ द सॉल्यूशंस of this trigonometric equation is equal to what? 6 pi. So this was 8 and इसी तरह के क्वेश्चंस सेमेस्टर सीटी में पूछे जाते हैं। अगर आपको इसके हाई लेवल के क्वेश्चंस चाहिए JEE लेवल के, तो मैंने डिस्क्रिप्शन, मैंने जैसे स्टार्ट में बोला था, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड दैट those problems are also very very important for JEE. Now see the question number 9, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी मुझे क्वेश्चन नंबर 9 में सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पूछा है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इन द इंटरवल 0 to 2 pi, और यहाँ पे मेरा इक्वेशन है
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/4. So this is 4 sin square theta minus 4 cos theta minus 1 will be equal to 0 multiplying by 4. So sin square theta is 1 minus cos square theta. So 4 minus 4 cos square theta minus 4 cos of theta, 4 cos theta minus 1 equal to 0. माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 4 cos थीटा प्लस 3 यानी -3 इक्वल टू 0. सो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0. टेकिंग 2 cos थीटा कॉमन, सो इट इज 2 cos theta plus 3 minus 1 common 2 cos theta plus 3. So again it is 2 cos theta plus 3 into 2 cos theta minus 1 equal to 0. तो यहाँ से मुझे cos theta equal to -3/2 मिलेगा, cos theta 1/2 मिलेगा. So again this is not possible, this is less than -1, does not belongs to -1 to 1. तो अब मुझे सम ऑफ द सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने का है इस इक्वेशन का इन द इंटरवल 0 to 2π. सो 0 to 2π में थीटा विल बी इक्वल टू, कॉस कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट π/3 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट 2π माइनस π/3. अब इनकी सम, सो इसकी सम क्या होगी, प्लस π/3 माइनस π/3 कैंसिल होगा, सम कितना होगा 2π. So this is the answer to this question and this is the sum of the roots of the equation is 2π. So this is in the option B. Now see the next question number 10 of the trigonometric equation. इसमें कोई जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन मैंने आज के लेक्चर में इंक्लूड नहीं किया है. क्वेश्चन के टाइप आप समझ में लीजिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या क्या क्या सॉल्यूशंस होते हैं, गिवन इंटरवल में क्या क्या सॉल्यूशंस होते हैं, अगर हैं तो कितने सॉल्यूशंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हम ले रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इन द इंटरवल 0 to 2π. गिवन इक्वेशन है sec x प्लस tan x इक्वल टू 2 cos of x. तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इज 1/cos x sin x बाय cos x इक्वल टू 2 cos x. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में cos x है, तो यहाँ पे हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0. cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो cos x अगर 0 होगा तो लेफ्ट हैंड साइड विल नॉट बी डिफाइन, ये टर्म डिफाइन नहीं होगी. सो cos x इक्वल टू नॉट 0 मीन्स x इज़ नॉट इक्वल टू π/2. x is not equal to 3π/2. π/2 3π/2 इसके सॉल्यूशन में नहीं आएंगे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं. 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स. सो 1 प्लस साइन एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स इज 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. ओके, सो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं. 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. टेकिंग 2 साइन एक्स कॉमन, साइन एक्स प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, साइन एक्स प्लस 1. सो इट इज 2 साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. सो साइन एक्स इक्वल टू 1/2, साइन एक्स इज इक्वल टू -1. सो साइन एक्स अगर -1 होता है,
साइन एक्स अगर -1 होता है तो -1 + 1 0, कॉस एक्स इक्वल टू 0, बट कॉस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, या साइन एक्स इक्वल टू -1 होता है, सो साइन एक्स इक्वल टू 3π/2, बट एक्स इज कैन नॉट बी इक्वल टू 3π/2, तो यहाँ से मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा. बाय दिस वैल्यू द गिवन इक्वेशन विल नॉट बी satisfied, therefore I have to cancel, I have to reject this solution, and only sin x equal to 1/2 and sin x equal to 1/2 के 0 to 2π में 0 to 2π में कितने सॉल्यूशंस होंगे? 2 सॉल्यूशंस होंगे. वन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अनदर इज इन सेकंड क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा π/6, सेकंड क्वाड्रेंट का होगा π - π/6, दैट इज 5π/6. सो स्टूडेंट्स, 10 problems are solved in this lecture and all the problems are very very important for MHT/CET. अगर आपको इसी तरह के इसी टाइप के JEE लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मैंने पहले भी बोला था, सी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें मैंने उस लेक्चर्स बनाए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस फॉर JEE. सो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरल सॉल्यूशंस के फॉर्मूले और इक्वेशन सॉल्व करते समय हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने के हैं, और वी विल सॉल्व द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन द जनरल सॉल्यूशंस ऑल्सो. ओके स्टूडेंट्स, बाय.